فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بہت کوشش کی صدق دل کے ساتھ تاکہ خطے میں امن قائم ہو. اس طرح سیز فائر میں پھر ایکسٹینشن ہوئی جو ہنوز جاری ہے. عباس عراقچی جو ہمارے بھائی ہیں فارن منسٹر ایران کے، وہ تشریف لائے اپنی ٹیم کے ذریعے. 2 گھنٹے کی نشست ہوئی، اس میں بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. پاکستان کے خطے میں پائیدار امن کے لیے بھرپور کاوشیں. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں سے جنگ بندی میں توسیع ہوئی. ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا مرحلہ 21 گھنٹے تک جاری رہا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کے بعد عمان اور روس کا دورہ بھی کیا. ایرانی وزیر خارجہ اپنی قیادت سے تفصیلی مشاورت کے بعد جواب دیں گے. وزیر اعظم کی کابینہ اجلاس میں گفتگو. جنگ سے پہلے ہمارا 1 ہفتے کا بل $300 ملین تھا، تو آج وہ $800 ملین پہ پہنچ گیا ہے. اجتماعی بصیرت اور اجتماعی کاوشوں سے ہم نے اس صورتحال کو پوری طرح مینج کرنے کی بہترین کاوشیں کی ہیں. آن اے ڈیلی بیسس ٹاسک فورس جو ہے اس ساری صورتحال کو وہ پوری طرح اس کی نگاہ ہے. تیل کی بڑھتی قیمتوں کے معاشی استحکام کی کوششوں پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ اور دیگر شعبوں میں سبسڈی جاری رکھنے کے لیے صوبوں سے مشاورت جاری ہے. پاکستان نے $3.5 ارب کے بیرونی قرضے واپس کیے ہیں. معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون پر سعودی قیادت کے مشکور ہیں. دعا گو ہیں کہ جنگ جلد ختم ہو اور امن قائم ہو. وزیر اعظم محمد شہباز شریف. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. ملکی سطح پر ویکسین کی تیاری کی پالیسی، ملک کی پہلی نیشنل ایگریکلچر بائیو ٹیکنالوجی پالیسی، نیشنل سیڈ پالیسی اور نیشنل سکلز ڈیولپمنٹ پالیسی کی منظوری. سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں وفاقی وزارت تعلیم میں یومیہ اجرت پر خدمات سر انجام دینے والے گریڈ 1 سے 15 کے اساتذہ کی خدمات بطور وزٹنگ فیکلٹی کی بھی منظوری. ریپ کی زیر نگرانی قیمتوں کے تعین اور معیار کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل. نیشنل ایگریکلچر بائیو ٹیکنالوجی پالیسی کا مقصد غذائی تحفظ، زرعی پیداوار میں اضافہ، تحقیق و ترقی اور مؤثر حکمت عملی کو یقینی بنانا ہے. نیشنل سیڈ پالیسی کے تحت عالمی معیار کی سیڈ کمپنیز کے ساتھ شراکت داری کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. صدر آصف علی زرداری کی چین کی کمپنیوں کو پاکستان میں توانائی، صنعت اور زراعت میں سرمایہ کاری بڑھانے کی دعوت. متبادل توانائی، واٹر ٹریٹمنٹ اور الیکٹرک وہیکل بیٹری سسٹم میں سرمایہ کاری پر زور. صدر مملکت اور ہانگ یو چین جونگ گروپ کے سی ای او وانگ جان کی ملاقات. چین کے بزنس گروپ کی پاکستان میں جاری منصوبوں اور کاروباری سرگرمیوں پر بریفنگ. پاک چین دوستی ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے گہری. عوامی محبت کا بیج اب ننھے دلوں میں پروان چڑھ رہا ہے. چین کے شہر ثانیہ کی فضاؤں میں محبت کے جذبات کا اظہار. چینی کم سن بچیوں نے صدر آصف علی زرداری سے آٹوگراف لیا. خوشگوار ماحول میں ہونے والی ملاقات میں بچیوں نے صدر مملکت کو تحفہ بھی دیا. صدر کا بچیوں سے نہایت شفقت و اپنائیت کا اظہار. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر حنیف عباسی کی ملاقات. وزارت ریلوے سے متعلق امور اور جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ. وزیر اعظم کا پاکستان ریلوے کے مسافروں کی سہولیات کے لیے اقدامات پر اظہار اطمینان. پاکستان ریلوے میں عوامی سہولت اور باحفاظت سفر یقینی بنانے کی ہدایت. وزیر اعظم کا ریلوے میں فریٹ سروس کو مزید مؤثر کرنے کی اہمیت پر زور.
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल और मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर की मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म को वज़ारत के मनसूबों और बीमारियों की रोकथाम के इक़दाम से आगाह किया। मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान ने वज़ीर आज़म को सनअत और पैदावार के मुतालिक उमूर से आगाह किया। मुलाकात में दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी सदर खालिद हुसैन मगसी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। खालिद मगसी ने वज़ीर आज़म को वज़ारत से मुतालिका उमूर और जारी मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह भी किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की उभरती सूरत हाल पर तबादला ख़याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुसलसल कोशिशों और रवाबित के लिए पाकिस्तान की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म का अफ्रीकन के दरमियान बातचीत, सफारतकारी और तामीरी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का एलान। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पायदार और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत और रवाबित की अहमियत पर जोर। सऊदी अरब की हिमायत और पाकिस्तान की जारी कोशिशों को सराहने पर इज़हार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद में नए मनसूबे SCO समिट से काबिल मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अवामी मनसूबों पर पेशरफ्त और नए मनसूबों का जायज़ा। CJ का तमाम रिकॉर्ड डिजिटाइज करने का फैसला। रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन 120 दिन में की जाएगी। शहरी अपनी दरखास्तों का अपडेट स्टेटस मालूम कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। वज़ीर आला मरियम नवाज से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी निगात फिल्म साज शर्मीन उबैद चुनाई की मुलाकात। NSITC सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल। इश्तराक कार पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने शर्मीन उबैद चुनाई की पेशा वराना कामयाबियों और महारत को सराहा। पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज। डिजिटल पाकिस्तान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का विजन। हुकूमत शहरियों को इंटरनेट की बेहतर सर्विस फराहम करने पर अमल पैरा। 5G से मुल्क में इंटरनेट की स्पीड में बेहतरी आएगी और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। नौजवानों को आलमी मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से लैस कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शाहज़ा फातिमा का यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान फोरम से खिताब। मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान अहम इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान आलमी तिजारत, सरमायाकारी और सलामती में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के IT, ज़राअत और सनत समेत मुख्तलिफ शोबे आलमी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश और महफूज मंजिल है। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख का लंदन में बरतानिया के आला दिफा और सलामती फोरम से तारीखी खिताब। वफाकी वज़ीर कॉमनवेल्थ की तिजारती और सरमायाकारी सरगर्मियों में भी शरीक। मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में मुल्क की तरक्की के राह पर गामजन किया। पंजाब हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए बहुत कुछ है। शोबा सेहत के बजट गुज़श्ता साल की निस्बत 400% ज़्यादा है। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए 80 अरब रुपए रखे गए थे। 1.5 साल में 20,000 ट्रैक्टर किसानों में तकसीम किए गए। 30,000 मजीद तकसीम करेंगे। फिल्मी सनत की बहाली के लिए फिल्म सिटी मनसूबा जल्द शुरू होने जा रहा है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कुदरती आफात के तबाहकुन असरात का मुकाबला करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, जामे हिकमत अमली और अवामी आगाही पर जोर। दुनिया भर में ज़लज़ला और दीगर कुदरती आफात के मुतासरीन से इज़हार यकजहती। पाकिस्तान में अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले के असरात कौमी यादाश्त में नक्श हैं। पाकिस्तान सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 ta 2030 पर अमल दरामद और महफूज मुस्तकबिल की तामीर के अज़्म का अदा करता है। ज़लज़ला मुतासरीन की याद में आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म का पैगाम। पाक तुर्क दोस्ती। तुर्की के बच्चों का पाकिस्तान से वालहाना मोहब्बत का इजहार।
ترکی کے اسکول کے بچوں کا جیوے پاکستان کمینے نغمہ گا کر پاکستان سے محبت کا لازوال پیغام۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جیوے پاکستان گاتے ترک بچوں کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اسے شاندار قرار دیا۔ معصوم بچوں نے سریلی آواز سے نغمہ گا کر سب کے دل جیت لیے۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنۃ الخارج کی بلا اشتعال جارحیت، پاک فوج کا بھرپور جواب۔ چمن سیکٹر میں طالبان کی متعدد چوکیوں اور گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ افغان طالبان اور فتنۃ الخارج پسپائی پر مجبور، سیکیورٹی فورسز کا دفاع وطن کے لیے غیر متزلزل عزم، ملک کی علاقائی سالمیت کو یقینی بنا رہا ہے۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ دیکھیں مارکہ حق جو ہے ہماری جو ہے تاریخ کا سب سے روشن باب ہے۔ وہ ہم نے مائل سٹون جو ہے عبور کیے، بڑے شاندار جو ہیں روشن جو ہمارے لمحات آئے ہماری تاریخ میں، ہم ایٹمی قوت بنے۔ مارکہ حق جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی۔ آزادی کے بعد مارکہ حق ہماری تاریخ کا روشن باب ہے۔ مارکہ حق کے بعد سفارتکاری کے محاذ پر بھی دنیا میں مقام نمایاں ہوا۔ آج عالمی سطح پر پاکستان کو سنجیدہ اور ذمہ دار ریاست کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان اپنے ایرانی بھائیوں اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ پاکستان عالمی اور علاقائی امن کے لیے اپنا مثبت کردار جاری رکھے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ مارکہ حق 9 اور 10 کی رات کو جب ہم پہ حملہ کیا، ہم نے ان کو بہت بھرپور جواب دیا۔ اللہ دے فضل کرم نال اس موتی نو ہی او سزا دیتی ہے، 70% ہی اللہ دے فضل کرم نال تباہ کر چھڑیا سی۔ ہماری سویلین جو تھی وہ شانہ بشانہ تھی۔ فصیل آہن کے نام سے مشہور سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری، اگلے مورچوں پر تعینات پاک فوج کے جوانوں کا بھارتی جارحیت پر دندان شکن جواب مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ مارکہ حق میں پاکستان کی حربی قوت نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ مادر وطن کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر۔ فالس فلیگ آپریشن اور سرحد پار دہشت گردی کے ذریعے سیاسی ناکامیوں سے توجہ ہٹانا مودی سرکار کا وتیرہ۔ بھارت پاکستان میں دہشت گرد نیٹ ورکس کی سرپرستی کر رہا ہے۔ بھارتی فوج کے حاضر سروس افسر دہشت گرد کارروائیوں کی براہ راست نگرانی کرتے ہیں۔ آئی ای ڈیز اور دھماکہ خیز مواد فراہم کر کے سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر۔ نہ ہم کمزور ہیں، نہ ہم خاموش ہیں، کتاب ہمارا ہتھیار اور کردار ہماری پہچان ہے۔ مارکہ حق میں ہم حق پر کھڑے رہے، دشمن یہ جان لے اگر کسی کی میلی آنکھ ہم پر پڑی تو ہم بنیان مرصوص ہیں۔ مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر نوجوانوں کے تاثرات۔ ہم ہیں مستقبل اور ہم ہی اسی قوم کا مقدر ہیں۔ نہ ہم کمزور ہیں، نہ ہم خاموش ہیں۔ ہم ہی نئی سوچ، نئی طاقت اور نیا پاکستان۔ ہم سے ہے باکامل تسخیر حوصلوں کی اڑان۔ ہمارے خواب بلند، ہمارے حوصلے مضبوط۔ کتاب ہمارا ہتھیار، کردار ہماری پہچان۔ ہمارے وطن کو جہاں بھی ضرورت پڑے ہم حاضر تھے، ہم حاضر ہیں۔ مارکہ حق میں ہم حق پر کھڑے رہیں۔ دشمن یہ جان لے اگر اس کی میلی آنکھ ہم پر پڑی۔ ہم ہیں بنیان المرصوص۔ ظلم، جبر اور قتل عام کے باوجود قابض بھارتی کشمیر کے دلوں سے پاکستان کی محبت نہ نکال سکا۔ کشمیریوں کا ایران امریکہ جنگ بندی پر پاکستانی قیادت کو زبردست خراج تحسین۔ بھارتی میڈیا این ڈی ٹی وی کے مطابق ضلع ڈوڈا میں پاکستان کے حق میں پوسٹر لگا دیے گئے۔ پوسٹر میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو امریکہ ایران جنگ بندی پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کا چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ تیز، ناکوں پر مسافروں اور راہگیروں کی تصدیق جاری۔ اسلام آباد، پلوامہ سمیت دیگر علاقوں میں طلباء سمیت معصوم شہریوں کی گرفتاریاں۔ جموں کی ایک عدالت نے محمد یاسین ملک کی عرضداشت مسترد کر دی۔
मीरवाइज का मुनकसिम खानदानों को दरपेश मुश्किलात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। इंसानी अलमिया के खात्मे के लिए मसला कश्मीर के हल के लिए साजगार माहौल नागुज़ीर है। मीरवाइज उमर फारूक। अमरीका ने ईरान को फौजी एतमाद से शिकस्त दे दी है। बरतानवी शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। बरतानिया से मजबूत रिश्ता बरकरार है। तारीखी ताल्लुकात उजागर करना फितरी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलका के एजाज में ईशाई की तकरीब से खिताब। ईरान अब तक गैर जौहरी मुआहदे पर इत्तफाक करने में नाकाम रहा है। जल्द समझदारी का मुजाहरा करना होगा। ईरान अपने मामलात दुरुस्त नहीं कर पा रहा। वो गैर जौहरी मुआहदे पर दस्तखत के तौर तरीके नहीं जानता। बेहतर है कि वो जल्द दानिशमंदी दिखाए। जर्मन चांसलर ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में गलत राय रखते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद। ईरान जंग में अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहे हैं। सदर ट्रंप ने अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए। हमें अपनी अफ़वाज को मज़ीद जदीद बनाने की ज़रूरत है। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी वज़ीर जंग और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की कांग्रेस की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग। अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरान के साथ मुसलसल राबते में हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस का ईरान के हवाले से दावा, जंगी सूरत हाल के दौरान ईरान को क़यादत के मामलात तय करने में मुश्किलात का सामना है। सदर ट्रंप सिर्फ ऐसे मुआहदे में शामिल होंगे जो अमरीका की कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह दे। तर्जमान व्हाइट हाउस। जंग बंदी के बावजूद जनूबी लेबनान पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले। एक खातून समेत 4 अफराद जाम हक, 3 बच्चों समेत 51 अफराद जख्मी। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान लेबनान में इजरायली फोर्सेस के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में 40 से ज़ायद अफराद जाम हक हो चुके हैं। इजरायली फ़ौज का गुज़श्ता चंद दिनों में हिज़्बुल्लाह के 50 से ज़ायद ठिकाने तबाह करने का भी दावा। सरबराह यूरोपीय कमीशन की लेबनान में जंग बंदी की अपील, सफारती अमल के जरिए तनाज़े के पायदार हल पर जोर। इनफॉर्म है स्लिप के फील्डर थे लेकिन बड़ी बेरहमी से खेला। एक और फुल शॉट और यहाँ पर मौका है। यहाँ आ रहे हैं मां सदाकत और कोई गलती नहीं की। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग 11 का पहला एलिमिनेटर। मुल्तान सुल्तान्स का हैदराबाद किंग्समैन को 160 रन का हदफ। 93 रन पर 7 खिलाड़ी आउट होने के बावजूद शान मसूद की जिम्मेदाराना बैटिंग। 69 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। 6 खिलाड़ी सिंगल फिगर में आउट। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर देखिए बराह रास्त। फातेह टीम जुमे को दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करेगी। हारने वाली टीम का इवेंट में सफर खत्म हो जाएगा। और वो डेप्थ जिम्बाब्वे की विमेन क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। पाकिस्तान विमेन टीम की मैनेजर ने इस्तकबाल किया। 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज कराची में खेली जाएगी। वनडे मैचेस 4, 6 और 9 मई को, T20 मैचेस 12, 14 और 15 मई को शेड्यूल। जिम्बाब्वे टीम का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। चीन में एशियन बीच गेम्स में पाकिस्तानी पहलवानों की शानदार कारकर्दगी। इनाम भट्ट और असदुल्ला ने चांदी के तमगे जीत लिए। इनाम भट्ट ने 90 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। असदुल्ला ने 80 किलोग्राम कैटेगरी में चांदी का तमगा जीत लिया। और मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट आलमी नंबर 1 बेलारूस की अरेना सबालेंका को अपसेट शिकस्त। अमेरिका की हालिबैप्टिस्ट ने 2-6, 6-2 और 7-6 से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 24 साल अमेरिकी खिलाड़ी की टॉप 5 रैंकिंग की किसी भी प्लेयर के खिलाफ ये पहली फतह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं उस्मा चौधरी। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली।
हेड लाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दौरे पाकिस्तान में सूरत हाल पर तफसीलन गुफ्तगू हुई। ईरान मुशावरत के बाद जवाब देगा। तफसील बताएंगे शाहरुख शफी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना को ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की मुखलसाना कोशिशों और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के मईशत पर असरात और हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान में लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया। बेपनाह काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इसहाक डार साहब, उन्होंने बहुत कोशिश की सदके दिल के साथ ताकि ख़त्ते में अमन कायम हो। इस तरह सीज़ फायर में फिर एक्सटेंशन हुई जो हनूस जारी है। अब्बास अराग़ची जो हमारे भाई हैं फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, वो तशरीफ़ लाए अपनी टीम के ज़रिए। 2 घंटे की नशस्त हुई, उसमें बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। मुझे उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं अपनी क़यादत से मशवरा करने के बाद इंशाअल्लाह जल्द आपको जवाब देंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी मंजरनामे की वजह से तेल की कीमतों में इजाफे ने मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों को मुतासिर किया है। इज्तिमाई कोशिशों से सूरत हाल से निमटने के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में सब्सिडी जारी रखने के लिए सूबों के साथ मुशावरत जारी है। दिन रात मेहनत करते हुए मसाइल को हल करना है। जंग से पहले हमारा एक हफ्ते का बिल $300 मिलियन था, तो आज वो $800 मिलियन पे पहुंच गया है। इज्तिमाई बसीरत और इज्तिमाई काविशों से हमने इस सूरत हाल को पूरी तरह मैनेज करने की बेहतरीन काविशें की हैं। ऑन अ डेली बेसिस टास्क फोर्स जो है इस सारी सूरत हाल को वो पूरी तरह उसकी निगाह है। 1 महीना जो सूबे अपने ताईं फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुशावरत में जो सब्सिडीज़ दे रहे थे, उनको आइंदा भी कंटिन्यू करने के लिए उनसे गुफ्तगू का फिलफौर आगाज़ किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने $3.5 अरब के बैरूनी कर्जे वापस किए हैं। उन्होंने मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खुसूसी तावन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौमों की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं, हमें मेहनत और यकसुई के साथ आगे बढ़ना है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी काबीना ने मुल्क की सतह पर वैक्सीन की तैयारी, मुल्क की पहली नेशनल एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल सीड और नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट पॉलिसी समेत पाकिस्तानियों के लिए आलमी मयार की तरबियत सर्टिफिकेशन के लिए खुसूसी इक़दामात के लिए पॉलिसियों की मंजूरी दे दी है। काबीना ने वफाकी वज़ारत तालीम में यौमिया उजरत पर खिदमात सर अंजाम देने वाले ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक के असातिज़ा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में उनके खिदमात बतौर विजिटिंग फैकल्टी की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले काबीना इजलास में मुल्की सतह पर वैक्सीन की तैयारी के तनासुर में खुसूसी कमेटी की तश्कील की भी मंजूरी दी गई, जिसका मकसद वैक्सीन की कीमत में दरामदात पर इन्हिसार कम करना, कीमती ज़र मुबादला की बचत और मुल्क को वैक्सीन की तैयारी में खुद कफील बनाना है। जबकि नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत मुल्क की सनत व तजारत की ज़रूरियात और दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक अफरादी क़ुव्वत की इस्तिदाद कार को हम आहंग करने के लिए अमली इक़दामात किए जाएंगे।
निजी शोबे में भी इस पॉलिसी पर अमल दरामद जरूरी होगा। नेशनल एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी का मकसद कौम की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ज़राई पैदावार में खातिर खा इजाफा और ज़राई शोबे में तहकीक व तरक्की के हवाले से मौसर हिकमत अमली को यकीनी बनाना है। इजलास में नेशनल सीड पॉलिसी की भी उसूली तौर पर मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना के इजलास में नेपरा की सालाना रिपोर्ट 2025 और स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2025 भी पेश की गई। इजलास में वफाकी वजीर बराए तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ इमरान अहमद शाह की वालिदा के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। और सदर आसिफ अली जरदारी से चीन की कंपनी होंगजू जिनजोंग ग्रुप के सीईओ वांग जॉन ने चीन के सूबे हिनान के शहर सानिया में मुलाकात की। सदर ममलकत ने मुतबादिल तवानाई, वाटर ट्रीटमेंट और ईवी बैटरी सिस्टम समेत तरजीही शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने की दावत दी। सदर ममलकत ने चीनी कंपनी को पाकिस्तान में तवानाई, सनत और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी के दायरे कार को मज़ीद वसअत देने की भी तरग़ीब दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस जदीद टेक्नोलॉजी में गैर मुल्की सरमायाकारी की भरपूर हौसला अफजाई कर रहा है। पाक चीन शराकतदारी से पायदार तरक्की और सनती इस्तेहकाम मुमकिन होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं। चीनी बिजनेस ग्रुप ने पाकिस्तान में जारी मनसूबों और कारोबारी सरगर्मियों से मुतालिक सदर ममलकत को ब्रीफ किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि होंगजू जिनजोंग ग्रुप पाकिस्तान में पहले ही मुतादिद मनसूबों में मसरूफ़ अमल है और चीन के सर फहरिस्त 100 कारोबारी ग्रुप्स में शुमार होता है, जिसका दायरेकार हैवी इंडस्ट्री, खाद, ऑयल एंड गैस, कोयला गैसिफिकेशन, काबिल तजदीद तवानाई, ज़राअत और आबपाशी समेत मुख्तलिफ शोबों तक फैला हुआ है। हिमालय से बुलंद और समुंदरों से गहरी पाक चीन दोस्ती महज सरकारी दस्तावेजात और बुलंदोबाला अमारतों तक महदूद नहीं, बल्कि अवामी मोहब्बत का बीज अब नन्हे दिलों में भी पनप रहा है। चीन के शहर सानिया के फिजाओं में मोहब्बत के जज्बात का इजहार करते हुए चीनी कमसिन बच्चियों ने सदर आसिफ अली जरदारी से ऑटोग्राफ लिया। खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकात में सदर ममलकत ने बच्चियों से निहायत शफकत और अपनाइयत का इजहार किया। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दौरे चीन के दौरान सानिया में एक निहायत खुशगवार और दिल को छू लेने वाला मंजर देखने में आया, जब चंद कमसिन चीनी बच्चियों ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की। इस मौके पर मासूम बच्चियों ने न सिर्फ सदर मुमलिकत से गुफ्तगू की, बल्कि खुशी का इजहार करते हुए उनसे ऑटोग्राफ भी लिया। मुलाकात का माहौल बेहद खुशगवार और दोस्ताना था। बच्चियों ने अपनी मोहब्बत और खलूस के इजहार के तौर पर सदर मुमलिकत को तोहफा भी दिया। सदर मुमलिकत ने बच्चियों के साथ निहायत शफकत और अपनाइयत का इजहार किया। ये दिलकश मनाजिर इस हकीकत की अक्कासी करते हैं कि हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाली पाक चीन दोस्ती हुकूमती सतह तक महदूद नहीं, बल्कि ये दिलों में बसती है। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और उनके साथ गुजारे गए ये मुख्तसर लम्हात दर हकीकत बड़े पैगाम अपने अंदर समोए हुए होते हैं। ऐसे लम्हात न सिर्फ मुसरत का बाइस बनते हैं, बल्कि आने वाले रोशन कल की उम्मीद को भी मजीद मजबूत करते हैं। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और अब वज़ीर आज़म की आज की कुछ अहम मुलाकातों के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को वज़ारत रेलवे से मुतालिक उमूर और जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान रेलवे में अवामी सहूलत और बाहिफाजत सफ़र को यकीनी बनाने के साथ साथ रेलवे में फ्रीट सर्विस को मज़ीद मौसर बनाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान रेलवे की जानिब से मुसाफिरों की सहूलियात के लिए उठाए गए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात में दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकज़ी सदर खालिद हुसैन मक्सी ने मुलाकात की है। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को वज़ारत से मुतालिका उमूर और जारी मंसूबों पर पेशरफ़्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कौमी सेहत के वफाकी वज़ीर सैयद मुस्तफ़ा कमाल और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफाकी वज़ीर सेहत ने वज़ीर आज़म को वज़ारत में जारी मनसूबों और बीमारियों की रोकथाम के लिए उठाए गए खुसूसी इक़दाम पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर खान ने वज़ीर आज़म को मुतालिका उमूर से आगाह किया। मुलाकात में दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ।
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने मुलाकात की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस मुलाकात में हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत और रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने सऊदी अरब की हिमायत और इस सिलसिले में पाकिस्तान की जारी कोशिशों को सराहने पर शुक्रिया अदा किया। फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पायदार और बिरादराना ताल्लुकात पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा एवट कॉपर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खत्ते की उभरती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल कोशिशों और रवाबित के लिए पाकिस्तान की तारीफ़ की। नायब वज़ीर आज़म ने फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत, सफारतकारी और तामीरी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर इत्तेफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने ईंधन के सब्सिडी और किफ़ायतशारी से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी इजलास की सदारत की, जिसमें कमेटी ने फ्यूल सब्सिडी के इक़दाम पर पेशरफ्त और वज़ीर आज़म के किफ़ायतशारी इक़दामात पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। नायब वज़ीर आज़म ने इन इक़दामात के नफाज के लिए हुकूमत के अज़्म का अयादा किया। यहाँ पर कुछ बुलेटिन में बात हो जाए ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ की। पाक फौज की ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत अफ़गान तालिबान की बेराइश्तियाल जारियत पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफ़गान तालिबान की मुतअद्दिद चौकियों और गाड़ियों को दुरुस्तगी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों ने अफ़गान तालिबान और फितन खारिज को पसपाई पर मजबूर किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का दिफा वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म मुल्क की इलाकाई सालमियत को यकीनी बना रहा है। अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो उसकी राह में इस तरह सफ बंद होकर लड़ते हैं जैसे कि एक शीशा पिलाई हुई दीवार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आज़ादी के बाद मार्का हक़ पाकिस्तान की तारीख का एक रोशन और फैसला कुन बाब है जिसने कौमी वक़ार को बुलंद किया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मार्का हक़ के बाद पाकिस्तान सफारती महाज पर एक मौसर और फाल किरदार के तौर पर उभरा है। ख्वाजा आसिफ ने इस अज़्म का इज़हार किया कि पाकिस्तान आलमी और इलाकाई अमन के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखेगा। देखिए, मार्का हक़ जो है हमारी जो है तारीख़ का सबसे रोशन बाब है। वो हमने माइलस्टोन जो है अबूर किए, बड़े शानदार जो है रोशन जो हमारे लम्हात आए हमारी तारीख़ में। हम एटमी क़ुव्वत बने। मार्का हक़ जो है उसमें अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दी और उसके बाद जो हमारा इस वक्त डिप्लोमेटिक स्टेटस है जिस तरह इन्हांस हुआ है, सारी दुनिया देख रही है कि फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म जो हैं वो एक किस्म का इस अमन के हवाले से जो है सबका आंख का तारा बने हुए हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ दे। और नाजरीन, मार्का हक़ और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल होने वाला है। ये वो मार्का है जिसने पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत को दुनिया के सामने नुमाया किया और ये पैगाम भी दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं हुसैन रजा। मारिका हक वो लम्हा है जब पाक फौज ने न सिर्फ दुश्मन के हमले को नाकाम बनाया बल्कि जदीद जंगी हिकमत अमली और फौलादी अज़्म के साथ हर महाज पर वाज़े बरतरी हासिल की। वर्किंग बाउंड्री सियालकोट, जिसे फसीले आहन भी कहा जाता है, पर होने वाली जारहियत का जवाब यहाँ तैनात जवानों ने जिस जुर्रत और साबित कदमी से दिया वो दुश्मन के लिए सबक आमोज था। मार्का हक 9 और 10 की रात को जब हम पे हमला किया, हमने उनको बहुत भरपूर जवाब दिया। उनके ऊपर आर्टिलरी, मोटर्स और भारी असले से ऐसा जवाब दिया कि उनकी कई पोस्टें तबाह हो गई। ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। वतन के जर्री जवानों में एक रोशन नाम कैप्टन यासिर का भी है, जो जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के सामने डटे रहे और महाज से पीछे न हटे। 9 मई की रात जब दुश्मन ने सीज़ फायर की वायलेशन की और हमारे पोस्ट पे फायर
کھول دیا. ہم نے بھی ان کے فائر کا مؤثر جواب دیا، جن کے نتیجے میں دشمن کی 3 سامنے والی جو پوسٹیں تھی وہ جل کے راکھ ہو گئی. اسی دوران دشمن کی آرٹلری شیلنگز کی زد میں آ کے میں اور میرے 3 جوان جو تھے وہ شدید زخمی ہو گئے. ہم نے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم نے دوبارہ ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں دشمن کو اپنا فائر بند کرنا پڑا. یہاں موجود جوانوں کا کہنا تھا کہ ہم نے مادر وطن کا دفاع ہمیشہ ہمت اور حوصلے سے کیا ہے اور آئندہ بھی اسی جذبے سے کرتے رہیں گے. جس طرح ہم نے پہلے مارکہ حق میں دشمن کو سبق سکھایا اور کاری ضرب دی ہے، اس سے انشاءاللہ بہترین سبق اس کو سکھائیں گے اور نشان عبرت بنائیں گے اس کو پوری دنیا کے لیے انشاءاللہ. پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کو جواز بنا کر کی جانے والی جارحیت کا ایسا دندان شکن جواب دیا گیا کہ دشمن کی ہر غلط فہمی ٹوٹ گئی. اس مارکے میں نہ صرف مسلح افواج نے اپنی صلاحیت اور عزم کا عملی مظاہرہ کیا بلکہ پوری قوم ایک مضبوط دیوار بن کر ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہی. انڈیا اتنے سوچے گا نہیں، او موتی نہیں سوچے گا. اللہ دے فضل کرم نال اس موتی نو ہی او سزا دیتی ہے. 70% ہی اللہ دے فضل کرم نال تباہ کر چھڑیا سی. ہماری سویلین جو تھی وہ شانہ بشانہ تھی، عوام جو تھی وہ فوج کے شانہ بشانہ تھی. تو نہ یہ ڈرتے ہیں نہ یہ بھاگتے ہیں. ہم تو ان کے ساتھ ہیں 1947 سے لے کر اس وقت تک ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. اور ٹھیک ہے جن جو گیا ہم پاک فوج کے نال. باقی جڑی انڈیا نے حرکت کی ہے نا جواب انہوں نے بہت سونا ملیا. ساری آرمی نے بہت اچھا جواب دیتا. انہوں نے فوج تو ساری ہے بڑی بہادر ہے، لیکن جی سول نے اسی تو کہنے کہ سانو کہ کر دو، اسی انہوں نے صحیح جواب دیے. یہی قومی صف بندی اس پورے منظر نامے کو مارکہ حق کی اصل تصویر سے جوڑتی ہے. ہم ہیں بنیان مرصوص، ہم ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار. حسین رضا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، سیالکوٹ، ورکنگ باؤنڈری. اور ناظرین، سچائی کسی بھی بیانیے کی بنیاد ہوتی ہے. مارکہ حق میں فوجی شکست کے بعد بھارتی میڈیا نے سنسنی خیزی کو سچ پر ترجیح دے کر نہ صرف اپنا اخلاقی جواز کھو دیا بلکہ دنیا کو یہ بھی دکھا دیا کہ جب صحافت ریاست کے پروپیگنڈے کو سیل میں بدل جائے تو وہ عوام اور سچائی دونوں کے ساتھ ناانصافی کرتی ہے. مزید بتا رہے ہیں عمران منصب خان اپنی رپورٹ میں. 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर आर्मी है. अगर यहाँ पर पोस्ट कोई शेयर करेगा ना उसको रात में ही उठा ले. انگریزی کی کہاوت ہے کہ ٹروتھ از دا فرسٹ کیجویلٹی آف وار، یعنی کسی بھی جنگ میں سب سے پہلا قتل سچ کا ہوتا ہے. مارکہ حق میں فوجی شکست کے بعد یہی کچھ ہوا بھارتی میڈیا کے ساتھ کہ وہ صحافت کے بنیادی اصول ہی بھلا بیٹھا. سنسنی خیزی، غیر مصدقہ اطلاعات اور بریکنگ نیوز کے چکر میں ایسی بے بنیاد خبریں بنائیں کہ خود عالمی سطح پر مذاق بن گیا. مارکہ حق کے دوران پاکستان کی قومی میڈیا نے بھارتی میڈیا سے منسوب پروپیگنڈے، جھوٹی خبروں اور گمراہ کن بیانیوں کا بروقت اور منظم انداز میں بھرپور جواب دیا، جس سے بھارتی بیانیہ کمزور پڑ گیا. اگر آپ کے پاس خبر نہیں تھی یہ حادثہ ہوا یا قصہ ہوا تو پھر واشنگٹن پوسٹ اپنے ایڈیٹوریل میں کہتا ہے کہ بھارت عالمی دہشت گردی میں ملوث ہے. پاکستانی میڈیا نے ISPR کے ذریعے جاری کردہ معلومات کو بنیاد بنا کر حقائق عوام تک پہنچائے، جس سے نہ صرف خبروں کی تصدیق ممکن ہوئی بلکہ قوم میں امید اور حوصلے کا جذبہ پیدا ہوا. جدید دور کی جنگوں میں اب اصل کامیابی صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہی. جو ملک اپنے بیانیے کو زیادہ مہارت، ایمانداری اور تسلسل کے ساتھ دنیا اور اپنی قوم کے سامنے پیش کرتا ہے وہی طویل المدتی کامیابی حاصل کرتا ہے. آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہو یا مارکہ حق، پاکستانی میڈیا نے ہر بحرانی صورتحال میں دشمن کے پروپیگنڈے کو بروقت اور سچ پر مبنی معلومات کے ذریعے ناکام کر کے دکھایا. عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اور مقبوضہ کشمیر کے عوام بھی پاک فوج اور پاکستانی قیادت کے مداح. مقبوضہ کشمیر کے عوام نے ایران امریکہ جنگ بندی پر پاکستانی قیادت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے. ظلم و جبر اور قتل عام کے باوجود قابض بھارت کشمیریوں کے دل سے پاکستان کی محبت نہ نکال سکا. فہد جاوید کی رپورٹ دیکھیے. مقبوضہ کشمیر کی عوام نے ایران امریکہ جنگ بندی پر پاکستانی قیادت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. ظلم و جبر اور قتل عام کے باوجود قابض بھارتی کشمیریوں کے دل سے پاکستان کی محبت نہیں نکال سکے. بھارتی میڈیا NDTV کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں پاکستان کے حق میں پوسٹر لگا دیے گئے. ہڈا کے ایک برج پر پاکستان کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے پوسٹرز اور پاکستانی جھنڈا لگے ہوئے دکھائی دیے ہیں. پوسٹر میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل
مارشل سید आसिम मुनीर को अमेरिका और ईरान जंग बंदी पर खिराज तहसीन पेश किया गया था। पाकिस्तान के हक में पोस्टर जम्मू व कश्मीर यूथ मूवमेंट की जानिब से लगाए गए हैं। भारतीय पुलिस ने पाकिस्तान के हक में पोस्टर लगाने पर FIR भी दर्ज कर ली। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुट गई है। यही वो पोस्टर है, देखिए। माहरीन के मुताबिक भारतीय रियासती दहशतगर्दी और कश्मीरियों पर बेइंतहा तशद्दुद के बावजूद कश्मीर की अवाम के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। मार्का हक में शानदार कामयाबी और सियासी व मिलिट्री डिप्लोमेसी के बायस पाकिस्तान के वकार में इजाफे को मकबूजा कश्मीर में भी सराहा जा रहा है। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में काबिज़ फोर्सेस ने बिला जवाज़ छापों, तलाशी की कार्रवाइयों और गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज़ कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजी, पैरा मिलिट्री और पुलिस एहलकार श्रीनगर, सोपुर, गांदरबल, इस्लामाबाद, पुलवामा और दीगर इलाकों में छापों के दौरान तलबा समेत लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। अहम शाहराहों पर लगे नाकों पर गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी ली जा रही है। काबिज़ फोर्सेस की तरफ से जबरो इस्तबदाद की बढ़ती हुई कार्रवाइयों ने हर तरफ खौफ और दहशत का माहौल पैदा कर रखा है। जम्मू की एक अदालत ने लिबरेशन फ्रंट के गैर कानूनी तौर पर नजरबंद चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक की दिहाइयों पुराने छूटे मुकदमे के बारे में एक अरजदाश्त मुस्तरद कर दी है, जिसमें उन्होंने मुकदमे के गवाहों के बारे में मालूमात की फ्राहमी की इस्तदा की थी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक ने कंट्रोल लाइन के आर पार मुनकसिम खानदानों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कैरन के एक हालिया वाक़या का हवाला दिया, जहां एक मुनकसिम खानदान फौत हो जाने वाले एक अजीज़ का ताबूत दरिया के दूसरे तरफ तो देख सकते थे, लेकिन उनके जनाजे में शरीक नहीं हो सकते थे। ऐसे मनाजिर कश्मीर के बेशुमार ख़ानदानों की अजियतनाक हकीकत की अक्कासी करते हैं। उन्होंने कहा कि इस इंसानी अलमिये के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि मसला कश्मीर के हल के लिए माहौल को साजगार बनाया जाए। पाक तुर्क दोस्ती की खूबसूरत मिसाल तुर्की के स्कूल के बच्चों ने जीवे जीवे पाकिस्तान का मिली नगमा गाकर पाकिस्तान से अपनी वालेहाना मोहब्बत का खूब इजहार किया। तफसील यासिर हुसैन से। तुर्की के स्कूल के बच्चों ने जीवे जीवे पाकिस्तान गाकर पाकिस्तान से लाजवाल मोहब्बत का पैगाम दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने जीवे पाकिस्तान गाते तुर्क बच्चों की वीडियो शेयर करते हुए इसे शानदार करार दिया। वीडियो में तुर्क बच्चे जीवे जीवे पाकिस्तान का मिली नगमा गाकर दोनों ममालिक के भाईचारे की बेहतरीन मिसाल पेश कर रहे हैं। तुर्क स्कूल के नन्हे बच्चों की आवाज में पाकिस्तान के लिए बेपनाह प्यार और अकीदत महसूस की जा सकती है। तुर्की के इन मासूम बच्चों ने अपनी सुरीली आवाज से जीवे पाकिस्तान गाकर सबके दिल जीत दिए। तुर्की के बच्चों ने अपने जज्बात के इजहार से पाक तुर्क दोस्ती को नई जहत दी है। पाक तुर्क ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मोहब्बत की बुनियाद पर कायम हैं और दोनों मुल्कों के अवाम के दिल एक दूसरे के लिए हमेशा धड़कते हैं। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेक्सेथ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन घन की कांग्रेस की हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अमरीका ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा, जबकि इस मकसद के लिए मुज़ाकरातकार एक मुआहदे की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ईरान जंग में अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहे हैं। उनके मुताबिक सदर की जानिब से पेश करदा $1.5 ट्रिलियन के दिफाई बजट की दरख्वास्त मौजूदा हालात की अक्कासी करती है। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा कि अमरीका अपने दिफाई सनती निज़ाम को दोबारा जंगी बुनियादों पर उस्तवार कर रहा है। बजट में इजाफे का मकसद अमरीकी दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना और इसे मौजूदा आलमी चैलेंजेस से निमटने के काबिल बनाना है। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में अमरीका को सबसे बड़े चैलेंज का सामना मायूस कुन और गैर जिम्मेदाराना बयानात देने वाले डेमोक्रेट से है। कांग्रेस में बाज़ डेमोक्रेट्स के बयानात गैर संजीदा और मायूस कुन हैं, जो मौजूदा हालात में अमरीका के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जौहरी मुआहदे के मामले पर खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान को जल्द समझदारी का मुजाहिरा करना होगा।
ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری پیغام میں کہا کہ ایران اب تک غیر جوہری معاہدے پر اتفاق کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ایران اپنے معاملات درست نہیں کر پا رہا، وہ غیر جوہری معاہدے پر دستخط کے طور طریقے نہیں جانتا، بہتر ہے کہ وہ جلد دانشمندی دکھائے۔ ٹرمپ نے جرمن چانسلر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ امریکی مذاکرات کار ایران کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور ایران کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ جنگی صورتحال کے دوران ایران کو اپنی قیادت کے معاملات طے کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ صرف ایسے معاہدے میں شامل ہوں گے جو امریکہ کی قومی سلامتی کو اولین ترجیح دے۔ اور اب خبر ہے لبنان سے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کے باوجود آج بھی جنوبی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں ایک خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق اور 3 بچوں سمیت 51 افراد زخمی ہو گئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران لبنان میں اسرائیلی فورسز کے فضائی اور زمینی حملوں میں 40 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ لبنان کی سرکاری نیشنل نیوز ایجنسی کے مطابق پیر کے روز اسرائیلی طیاروں نے جنوبی لبنان کے قصبوں غندوریا اور مجد السلم کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فورسز نے گزشتہ چند دنوں کے دوران جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے 50 سے زائد ٹھکانے تباہ کیے ہیں۔ یورپی کمیشن کی سربراہ نے لبنان میں جنگ بندی کی اپیل کی ہے اور سفارتی عمل کے ذریعے تنازع کے پائیدار حل پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی مقصد جنگ کا مستقل خاتمہ ہے۔ عالمی منظرنامے سے خبریں آپ جان چکے ہیں، بڑھتے ہیں کچھ قومی خبروں کی جانب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے آسکر ایوارڈ یافتہ پاکستانی نژاد فلم ساز شرمین عبید چنائے نے لاہور میں ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فلم ساز شرمین عبید چنائے کی پیشہ ورانہ کامیابیوں اور مہارت کو سراہا اور فن و ثقافت کے لیے خدمات پر ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں NSIT سٹی میں پنجاب فلم فیسٹیول کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اس حوالے سے اشتراک کار پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب فلم سٹی پروجیکٹ پاکستان کا پہلا اینڈ ٹو اینڈ میڈیا پروڈکشن ہب بنے گا، جس میں فلم، ٹی وی، ڈیجیٹل میڈیا، VFX اور پوسٹ پروڈکشن کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب فلم فیسٹیول میں جدید اسٹوڈیوز، ساؤنڈ سٹیجز، پوسٹ پروڈکشن لیبز، شوٹنگ سپاٹ، جھیل بھی بنائیں گے، جبکہ کنونشن ہال، میڈیا ٹریڈ ہب اور فلم و میوزک اسکول بھی قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے PHA کو مینار پاکستان ڈیجیٹل ہسٹری میوزیم کی بحالی کی ہدایت کی۔ فلم ساز شرمین عبید چنائے نے کئی دہائیوں بعد بسنت فیسٹیول کے انعقاد پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کاوش کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ بسنت میلے کو عالمی سطح پر متعارف کرانے کے لیے اگلے سال ہالی ووڈ سٹار کو باقاعدہ مدعو کیا جائے گا۔ شرمین عبید چنائے نے کہا کہ پنجاب میں ہارس اینڈ کیٹل شو کا انعقاد قابل تحسین ہے۔ میلوں میں عوام کو معیاری تفریح کے مواقع میسر ہوتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے کراچی میں ازبکستان کے نووئی ریجن کے گورنر نورمت تورسونوف نے ملاقات کی۔ اس موقع پر علاقائی اور اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا اور معدنیات اور توانائی کے منصوبوں میں تعاون و شراکت داری کے امکانات پر بھی بات کی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وسطی ایشیا کو پاکستان سے جوڑنے والی تجارتی راہداری خطے کی ترقی کے لیے اہم ہے۔ ازبکستان کے نووئی ریجن کے گورنر نورمت تورسونوف نے کہا کہ پاکستان دوست ملک ہے، باہمی تعاون کے مواقع میں اضافے سے خطے کو فائدہ ہوگا۔ اسلام آباد میں پہلا یورپی یونین پاکستان بزنس فورم اختتام پذیر ہو گیا۔ فورم میں نئی شراکت داریوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ تفصیل جانتے ہیں وقار حیدر کی رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں پہلی بار 2 روزہ یورپی یونین پاکستان بزنس فورم کا انعقاد کیا گیا۔ اس فورم کے ذریعے تقریباً 1000 سینئر پالیسی سازوں، یورپی اور پاکستانی کاروباری افراد، سرمایہ کاروں اور مالیاتی اداروں کو جمع کیا گیا۔ اس فورم کے دوران یورپی یونین پاکستان بزنس نیٹ ورک کا بھی آغاز کیا گیا۔ وزیر مالیاتی تبدیلی مصدق ملک نے اختتامی تقریب سے خطاب میں کہا، پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی روابط مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ سرمایہ کاری اور کاروباری مواقع کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ If you want productivity, one-time productivity you can get from technology. But long-term productivity or sustainable productivity only comes from a system of innovation. So I think through the partnerships that we have put forth over the past few days, what we are creating is this engine
for ingenuity and innovation. And I think if we are able to do that, this would lead to diffusion of technology over a period of time and eventually towards wealth creation. So this is perhaps the most credible and fantastic platform for what I'm calling the innovation ecology. सेक्रेटरी तिजारत जवाद पाल ने कहा मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर गवर्नेंस और कारोबारी माहौल नहायत अहम है। यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा कारोबारी मौके पैदा होंगे। 2 रोज़ा फोरम के दौरान तकरीबन 600 बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें हुई जो यूरोपीय और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान मुश्तरका मंसूबों और शराकत दारी में गहरी दिलचस्पी की अक्कासी करती हैं। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट ये कहती है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं, जबकि बालाई वस्ती पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज़्यादा बारिश कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में रिकॉर्ड की गई। नाज़रीन, खेल में बात करते हैं PSL की। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के पहले एलिमिनेटर में मुल्तान सुल्तान्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 160 रन का हदफ दिया है। जवाब में हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग जारी है। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में हैदराबाद किंग्समैन ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। मुल्तान सुल्तान्स ने 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 159 रन स्कोर किए। 93 के स्कोर पर 7 विकेटें गिरने के बावजूद शान मसूद ने जिम्मेदारी से बैटिंग की और आखिर तक डटे रहे। उन्होंने 46 गेंदों पर 69 रन बनाए और वो नॉट आउट बैठे रहे। शान मसूद ने 4 छक्के और 4 चौके लगाए। इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज नुमाया स्कोर ना कर सका। 6 बल्लेबाज को सिंगल फिगर में ही पेविलियन की राह देखनी पड़ गई। हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से मोहम्मद अली, आकिफ जावेद और हुनैन शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। आज फातेह टीम जुमे को दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करेगी। हारने वाली टीम का इवेंट में सफर खत्म हो जाएगा। अंदाजा हो जाना चाहिए था और इनको बिल्कुल नहीं हुआ। इनकी टीम को फतवाहत मिल रही। नाज़रीन, लाहौर में पहला एलिमिनेटर देखने के लिए शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में कज़ाफी स्टेडियम पहुंचे। उनका कहना है कि स्टेडियम में मैच देखने की इजाज़त मिलने पर बेहद खुश हैं। प्ले ऑफ और फाइनल में पसंदीदा खिलाड़ियों को भरपूर सपोर्ट करेंगे। फैंस के साथ तो आपको पता है क्रिकेट है, क्रिकेट का एक जो चांस है उस पर जितना आप बकअप करेंगे, जितना आप समझ लें कि क्राउड होगा उनको सपोर्ट करेगा, देन दे परफॉर्म वेल। आप नॉर्मल रूटीन से हट के कुछ चीज़ों को सेंस करते हो, फील करते हो, तो वो एक पॉजिटिव वाइब आती है। ओवरऑल टूर्नामेंट ओवरऑल बहुत अच्छा था। जो क्राउड का इन्होंने फैसला किया ये बहुत ही आला है। इससे जो है हमारे पाकिस्तान की PSL की वर्ल्ड वाइड जो है इसमें बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा होता है, मज़ा भी आता है। अब देखें, हम अलाउ किया तो हम आए हैं देखने के लिए मैच, मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसी होना चाहिए था। पहले तो मैचेस का मज़ा ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब ज़्यादा मज़ा आ रहा है मैचेस का। बहुत अच्छा लग रहा है, इधर क्राउड दिया है इन्होंने। और एक ब्रेक लेते हैं जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त, बार वक्त।